অত্যন্ত প্রিয় বিরোধী দলনেতা। হাততালি দিয়ে সবাই একবার। भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय भवानी, जय शिवाजी। সমবেত পশ্চিমবঙ্গ মহিলা মোর্চার মহানগর এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে আগত আমার সমস্ত দিদি এবং বোনেদেরকে আমি আমার অন্তর থেকে শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। না জাগিলে ললনা, এ বিশ্ব জাগে না। মাতৃশক্তি, দেবী শক্তি, নারী শক্তি আপনাদেরকে বন্দন করি, প্রণাম করি। আজকের এই কর্মসূচি আমাদের মহিলা মোর্চার তাদের কার্যকর্তা এবং বিশেষ বিশেষ দায়িত্বশীল পদাধিকারী যারা আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গে আসল পরিবর্তন আনবেন তাদেরকে ডাকা হয়েছে। আমাদের এই কর্মসূচির মুখ্য বক্তা, প্রধান অতিথি, যিনি নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে দিল্লিতে 27 বছর পরে একটি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইয়ের সরকার ছিল, সেই কেজরিওয়ালের সরকারকে পরাস্ত করে ভারতবর্ষের রাজধানীর মুখ্যমন্ত্রিত্বর দায়িত্ব নিয়েছেন दीदी रेखा गुप्ता जी। তিনি আজকে প্রধান বক্তা। मैं मेरा दिल से दीदी को आभार प्रकट करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। আমাদের পাশের ঝাড়খণ্ডের আরেক দিদি, যিনি আজকে ভারত সরকারের জনপ্রিয় মন্ত্রী, যিনি দুমকা সহ আমাদের পাশের যে ধানবাদ নালা আমাদের একেবারে পশ্চিম বর্ধমানের গায়ে, সেখানে দিদি তার কাজ করেন এবং গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে কাজ করেন। আমি অন্নপূর্ণা দিকে আমার অন্তর থেকে শ্রদ্ধা জানাই, স্বাগত জানাই। আমাদের মহিলা মোর্চার অল ইন্ডিয়া লিডার শ্রীমতী সঙ্গীতা যাদবজি, राज्यसभा मेंबर फ्रॉम यूपी, मैं संगीता जी को मेरा दिल से स्वागत करता हूँ। আমাদের পাশের রাজ্য উড়িষ্যা থেকে সুজাতা দিদি এসেছেন, দিদিকে আমি জয় জগন্নাথ জানাচ্ছি। আমাদের মধ্যে উপবিষ্ট আছেন রাজ্যের সাধারণ সম্পাদিকা, লড়াকু নেত্রী শ্রীমতী শশী অগ্নিহোত্রী, ভারত সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী আমাদের সহসভানেত্রী দেবশ্রী চৌধুরী দিদি, রাজ্য মহিলা মোর্চার সভানেত্রী শ্রীমতী ফাল্গুনী পাত্র সহ আমাদের মঞ্চে অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে আমি ধন্যবাদ জানাই। আপনারা জানেন যে আজকে আমরা মূল অন্নপূর্ণা দি এবং রেখাদির কাছ থেকে শুনব, কিন্তু আগামী নির্বাচনে আপনাদের পশ্চিমবাংলার রাষ্ট্রবাদী মহিলাদেরকে সংঘবদ্ধ করার জন্য বড় দায়িত্ব এবং গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নিতে হবে। সেক্ষেত্রে মহিলাদের মধ্যে, মাতৃশক্তি, নারী শক্তির মধ্যে আপনাদের যে বিষয়গুলো মোদিজি করেছেন তার 11 বছরের রাজত্বে, যে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তগুলো করেছেন, কার্যকর করেছেন, সেই বিষয়ে কয়েকটি বিন্দু আপনাদের কাছে রাখছি। প্রথমত, 1996 সাল থেকে সংসদে এবং বিধানসভায় মহিলাদের 1/3 সংরক্ষণের প্রত্যেকবার বিল আসত, পাশ হতো না। মাননীয় মমতা ব্যানার্জি কোনোদিন বিদ্রোহ করেননি, কোনোদিন তিনি একাধিকবার কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী ছিলেন, তার কোনো ভূমিকা ছিল না। কিন্তু 2023 সালের ডিসেম্বর মাসে নরেন্দ্র মোদীজি লোকসভা এবং বিধানসভায় দুটি কক্ষে
সংবিধান সংশোধন করে নারী শক্তিকে 1/3 সংরক্ষণ পাইয়ে দিয়েছেন, যেটা আমাদের কাছে একটা যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। আগামী 2029 সাল থেকে লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচনে আপনারা 1/3 মহিলা দিদিরা বোনেরা পার্লামেন্টে এবং অ্যাসেম্বলিতে যাবেন। এটা সম্ভব হয়েছে মোদিজি হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়। মোদিজি আমাদের 5টা কর্মসূচি তিনি প্রথম দিন থেকে নিয়েছেন, 5টাই মাতৃশক্তির কথা ভেবে। প্রথমে নরেন্দ্র মোদিজি আসার পরে তিনি উজালা গ্যাস তিনি চালু করেছেন, উজালা 1, উজালা 2, উজালা 3। কারণ আপনারা জানেন যে বিগত দিনে মায়েরা দিদিরা বোনেরা যারা আমাদের রান্না করে খাওয়ায়, যাদের উপরে আমাদের খাদ্য নির্ভর করে, তাদেরকে কয়লাতে ঘুঁটেতে জ্বালানি কাঠে কিভাবে তাদেরকে রান্না করতে হতো, তার ফলে তাদের চোখ থেকে শুরু করে নানা রকমের ব্যাধিতে তারা আক্রান্ত হতেন। মোদিজি তার অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি মাতৃশক্তিকে এই জায়গা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য উজালা 1, উজালা 2, উজালা 3 এনেছেন এবং বাজারে যে গ্যাসের দাম তার থেকে 400 টাকা কম মূল্যে আমাদের বোনেরা এই সুযোগ পাচ্ছে। শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, যারা প্রত্যেক দিন বলেন কেন্দ্র আমাদের কিছু দেয় না। সেই মোদিজি পশ্চিমবঙ্গে 11 কোটি মোট উজালা প্রাপকের মধ্যে 1,29,00,000 পশ্চিমবঙ্গের মা বোন দিদি উজালা 1 এবং 2 পায়। এই মুখ্যমন্ত্রী উজালা 3-তে 15 লক্ষ নতুন কানেকশন মোদিজি দিতে চেয়েছেন, দিতে দেননি। তাই একে সরাতে হবে। সরালে আগামী মে মাসে আমরা আরো 25 লক্ষ দিদিকে বোনকে উজালার 3-তে অন্তর্ভুক্ত করব। দ্বিতীয় কি করেছেন? দ্বিতীয় করেছেন স্বচ্ছ ভারত অভিযান। মায়েদের বোনেদের দিদিদের সম্মানের জন্য মোদিজি গোটা ভারতবর্ষে 14 কোটি স্বচ্ছ ভারত মিশনে আদর্শ শৌচালয় নির্মাণ করেছেন, 14 কোটি, যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে 72 লক্ষ তিনি ইউনিট দিয়েছেন। তৃতীয় কি করেছেন? প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনাতে আপনারা জানেন বাড়ির কার নামে এগ্রিমেন্ট হবে? এগ্রিমেন্ট হবে বাড়ির যিনি সিনিয়র মহিলা রয়েছেন, দিদি মা, তার নামে এগ্রিমেন্ট করলেই তাহলেই প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা পাওয়া যাবে। পশ্চিমবঙ্গে গোটা দেশে 5 কোটির বেশি আবাস হয়েছে, মহিলারা তার মালিক হয়েছে, চাবিটা মহিলাদের কাছে আছে। পশ্চিমবঙ্গেও নরেন্দ্র মোদিজি 30,000 কোটি টাকা 40 লক্ষ ইউনিট প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা মা দিদি বোনেদের জন্য দিয়েছেন। চতুর্থ কি করেছেন? 2021 সালে মে মাস থেকে আজ পর্যন্ত 82 কোটি ভারতবর্ষের লোককে প্রধানমন্ত্রী অন্ন সুরক্ষা যোজনাতে তিনি মাথা পিছু 5 কেজি করে চাল অথবা গম দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। কারণ হেসেলটা আপনাদের সামলাতে হয়, আপনাদেরই রুটি আর ভাত আপনাদেরই বানাতে হয়। মোদিজি দিয়েছেন এই রাজ্যে এই 82 কোটির মধ্যে 7 কোটি প্রধানমন্ত্রী অন্ন সুরক্ষা যোজনায় সুযোগ পাচ্ছেন। এটা হলো চতুর্থ। রান্না করতে, ঘরের কাজ করতে লাগে জল, পরিশ্রুত জল, খেতে জল লাগে, পানীয় জল। মোদিজি জল জীবন মিশনে নলে জল দিয়েছেন, পরিশ্রুত পানীয় জল। পশ্চিমবঙ্গে নল আছে, জল নেই। 27,000 কোটি টাকা এই চোর তৃণমূল খেয়ে নিয়েছে। তাই পশ্চিমবঙ্গে ঘরে ঘরে আপনারা এই কথাগুলো বলুন। নরেন্দ্র মোদিজি এই কাজগুলো মহিলাদের জন্য তিনি করেছেন, দিয়েছেন এবং মহিলা সশক্তিকরণের জন্য
লাখপতি দিদি থেকে শুরু করে ভারতবর্ষের যতগুলো বিজেপি এনডিএ রুল সরকার রয়েছে, তারা মহিলাদের জন্য যে যে সংকল্পপত্রে রেখেছিল, ঠিক একইভাবে 6 মাসের মধ্যে সর্বত্র মহিলা সশক্তিকরণের জন্য সেই কাজ সম্পূর্ণ করেছে। উড়িষ্যায় সুভদ্রা যোজনা হোক, মহারাষ্ট্রে লাডলি বাহিন হোক, মধ্যপ্রদেশে লাডলি বাহিন হোক, ছত্তিশগড়ে মা তারি যোজনা হোক, সব সংকল্পপত্রে ভারতীয় জনতা পার্টি যা যা রেখেছে তাই করেছে। আপনারা পশ্চিমবাংলার মা বোন দিদিদের বলবেন, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি সংকল্পপত্রে থাকবে। ভারতীয় জনতা পার্টি সিদ্ধান্ত নিয়েছে এপ্রিল মাসের শেষে সরকার হলে 1 মে আমরা 3000 টাকা দেব। মে মাসে আমাদের সরকার হলে 1 জুন আমরা অ্যাকাউন্টে 3000 টাকা পাঠাবো। আমরা সবাই বসে, আমি রাজ্য সভাপতি, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি সংকল্পপত্রে থাকবে। আপনারা মহিলাদেরকে সংগঠিত করুন। সবচেয়ে বড় ইস্যু হচ্ছে নারী সুরক্ষা। নারী সুরক্ষা, বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার হিন্দু মা বোন দিদি এবং কন্যা কেউ এই রাজত্বে সুরক্ষিত নয়। আরজি কর ভুলে গেছেন? না, ভুলেননি আপনারা। আরজি করের কথা কেউ ভুলে যাওয়া উচিত নয়। শুধু আরজি কর নয়, এই মুখ্যমন্ত্রী যেদিন থেকে দায়িত্ব নিয়েছেন, পার্ক স্ট্রিট থেকে কামদুনি থেকে শুরু করে আজকে দুর্গাপুর মেডিকেল কলেজ পর্যন্ত মহিলাদের উপরে কি ধরনের অত্যাচার হয়েছে আপনারা দেখেছেন। রামপুরহাটে 6 বছরে আদিবাসী কন্যা হতে পারে, কালিয়াগঞ্জে ছোট্ট শিশু তামান্না হতে পারে। পশ্চিমবাংলায় এই মুখ্যমন্ত্রীর রাজত্বে, তৃণমূলের গুন্ডাদের রাজত্বে, এই জেহাদিদের রাজত্বে, এই মুসলিম লীগ 2 সরকারের রাজত্বে, এই জামাতিদের হাতে কোনো মহিলা রাজ্যে সুরক্ষিত নয়। তাই আগামী নির্বাচনে নারী সুরক্ষা আমাদের অগ্রাধিকার। আমরা বলেছি অনেক সভাতে যে ধর্ষক এবং যারা গ্যাং রেপ করছেন, এক শ্রেণীর বিশেষভাবে রাজ্য সরকার এবং পুলিশের দ্বারা যারা পেট্রোনাইজ হচ্ছেন, উৎসাহিত হচ্ছেন, ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারকে আপনারা আনবেন। কোন ধর্ষককে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে আমরা থাকতে দেব না। আইনের চোখে আমাদের যা করার দরকার, বিজেপি শাসিত রাজ্যে যেভাবে হয় ব্যবস্থা, পশ্চিমবঙ্গেও আগামী দিনে সেই ব্যবস্থা আমরা করব। এই মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার দুর্গাপুর আইকিউ সিটির ঘটনার পরে বলেছিল মহিলারা রাত্রে বেরোবেন না, মহিলাদের রাত্রে বেরোনো উচিত নয়। এরপরেও আমার মনে হয় না পশ্চিমবাংলার কোনো মহিলা এদেরকে সমর্থন করবেন। আগামী দিনে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারকে আনার ক্ষেত্রে মহিলা মোর্চার দেবতুল্য কার্যকর্তাগণ বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করবে। আমরা রেখাদির কথা শুনব, অন্নপূর্ণাদির কথা শুনব। তাই বক্তব্যকে আমি দীর্ঘায়িত করতে চাই না। আমি শুধু একটা কথাই আপনাদের বলবো, আগামী দিনে পরিবর্তন আনতে হবে। নরেন্দ্র মোদীজি ইতিমধ্যে পরিবর্তন সংকল্প সভা করেছেন এবং বলেছেন তাই পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার, তাই পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার আনতে হবে। এবং নারী বিরোধী, হিন্দু বিরোধী এই সরকারকে তুলে ফেলার দায়িত্ব আপনাদের নিতে হবে। এই সরকার মা কালীকে পর্যন্ত ছেড়ে দেয়নি। কিছুদিন আগে কাকদ্বীপের সূর্যনগরে মা কালীকে পুলিশের প্রিজন ভ্যানে তুলেছে। ধ্বংস হবে, ধ্বংস হবে, ধ্বংস হবে। আসল পরিবর্তন হবে, ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার হবে, নারীরা সুরক্ষিত হবে। বিজেপির অঙ্গীকার হাতে কাজ, পেটে ভাত, মাথায় ছাদ, প্রধানমন্ত্রী সূর্য গলে সোলার আলো, নলে জল। আপনারা ভালো থাকবেন। বিজেপির এই অঙ্গীকার আপনারা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার কাজ করবেন। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে, অভিনন্দন জানিয়ে আমি
আরেকবার আমার সবাইকে অভিনন্দন দিয়ে আমার কথা শেষ করলাম। গো মাতা কি, গঙ্গা মাতা কি, দেবী মা দুর্গা কি, মা কালী কি, দক্ষিণেশ্বর মন্দির কি, কালীঘাট মন্দির কি, মা তারা কি, মা তারা কি, বন্দে বন্দে বন্দে। অসংখ্য ধন্যবাদ মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে আমাদের মধ্যে এত উৎসাহ দেওয়ার জন্য। এবার আমাদের পরবর্তী নিবেদন, আমি এবার আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের অন্নপূর্ণা দেবী, ওনাকে আমি মঞ্চে এসে ওনার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। মাননীয়া অন্নপূর্ণা দেবী মহাশয়া, সবাই একটু করতালি দিয়ে ওনাকে আহ্বান জানাবেন। সবাইকে নমস্কার। আজকে এই প্রোগ্রামে বাংলার এই পুণ্যভূমিকে আমি কোটি কোটি নমন করি, প্রণাম করি। আর এই প্রোগ্রামে উপস্থিত দিল্লি 27 বছর পরে ভারতীয় জনতা পার্টির মুখ্যমন্ত্রী আমাদের दीदी रेखा गुप्ता जी, दिल्ली मुख्यमंत्री, उपस्थित मंच पर अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष अभी कार्यक्रम के लिए गए, सौमिक भट्टाचार्य जी, नेता प्रतिपक्ष श्री शुभेंदु अधिकारी जी, राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश से सांसद संगीता यादव जी, प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष फाल्गुनी पात्रा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और पूर्व मंत्री दीदी देवश्री चौधरी जी, प्रदेश महामंत्री शशि अग्निहोत्री जी, उड़ीसा से आए हुए हमारी दीदी सुजाता पाड़ी जी सहित भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के सभी सम्मानित हमारी महिला बहनें, मंच पर उपस्थित, सामने उपस्थित सभी हमारी दीदियाँ, उपस्थित सभी सम्मानित साथीगण, आज এই প্রোগ্রামে कार्यक्रमे আমি আপনাদের নমস্কার করে এই মাটিতে শক্তি আছে, সংস্কৃতি আছে, করুণা আছে, বিপ্লব আছে। আর মা দুর্গা ও মা কালীর আশীর্বাদে পরিপূর্ণ হয়ে এই পবিত্র ভূমিতে, পবিত্র মাটিতে বিজেপি মহিলা মোর্চার সবাইকে আমি শক্তি স্বরূপা আমাদের সকল বোনেদের আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। আজকের এই সম্মেলনে বাংলার অস্মিতা এবং রাষ্ট্রীয় মাতৃশক্তির বিরাট সংকল্প, বাংলার নিজের ঊর্জা বাহিনী বোনেদের সঙ্গে আজকে এই সংবাদ করতে পেরে আমার খুব ভালো লেগেছে। আর আপনাদের মধ্যে আজ যে ভারতের বর্তমান এবং 2047-2047 ভবিষ্যের স্বর্ণিম ভবিষ্যের ঝলকও এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই সেই বঙ্গ যে দেশকে রাস্তা দেখায়, কিন্তু আজ এই পশ্চিমবঙ্গের
কি স্থিতি সেটা আমরা সবাই জানি। আজ এক মহিলা মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গে, কিন্তু আজকে পশ্চিমবঙ্গেই সবচেয়ে বেশি চর্চা মহিলা সুরক্ষা। এক মহিলা মুখ্যমন্ত্রী থাকার পরেও আজ এখানে আমাদের মহিলারা কেউ সেফ নেই, কেউ সুরক্ষিত নেই। আজ এখন দাদা বলছিলেন আরজি কর মেডিকেল কলেজের যে মেয়ের রেপ হয়ে যে ঘটনা ঘটেছে আমরা ভুলিনি। আর একটা শুধুই আরজি কর নেই, আরজি করের মতো অনেক ঘটনা। কিছুদিন আগে সন্দেশখালি, আপনারা নিশ্চয় আপনাদের মনে আছে, সন্দেশখালির ঘটনা পুরো দেশ হিলে গেছে ওই ঘটনায়। সেই সময় পার্টির তরফ থেকে একটা ডেলিগেশনে আমিও সেই সময় এসেছিলাম, কিন্তু ওইখানে যেতে দিল না। কিন্তু ওইখানে যে ওখানকার আমাদের পীড়িত মহিলারা, ওনার সঙ্গে কথা হলো, ভিডিও কলে কথা হয়েছিল, খুব ভয়াক্রান্ত ছিল। সেই নিজের মুখটা দেখতে দেয়নি, সেটা ঢেকে, কেন কি বলছে কি যদি এটা দেখে নেয় কেউ তাহলে আবার আমাদেরকে মারবে বা আমাদেরকে প্রতারিত করবে। তো এই ভয়ে সেই সময় ওইখানে সন্দেশখালিতে মেয়েরা বলছিল যা ঘটনা ওনাদের সঙ্গে ঘটেছিল। তো এই সেই বাঙ্গাল, এই পশ্চিম বাঙ্গালে মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর হবার পরেও আজ যে বর্তমান যা স্থিতি খারাপ সেটা আমরা সবাই জানছি। একের পর এক ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। আমরা জানি কালিয়াগঞ্জ এবং মালদাতে যে ঘটনা হয়েছিল নাবালিক মেয়েদের সঙ্গে, নাবালিক বাচ্চাদের সঙ্গে। তারপরে পার্ক স্ট্রিট গ্যাংরেপ 2012-তে এটা হয়েছিল। কিন্তু লাগাতার এখানে দেখছি লাগাতার একের পর এক ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। আর এই সরকার চুপ, দিদির সরকার মন ধারণ করে নিয়েছে। উনি অপরাধীদেরকে সংরক্ষণ দেয়, অপরাধীকেও কোনো কানুনের ভয় নেই, কেন কি ওর সংরক্ষণকর্তা দিদি আছে, মমতা দিদি, এই বাংলাদেশের এই পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। তো সেই জন্য আজ যা স্থিতি হয়েছে, শিলিগুড়ি শেল্টার হোম যেখানে মহিলারা থাকে, যেটা শেল্টার হোম, ওইখানেও ওনাদের ছাড়েনি, ওইখানেও মহিলার সঙ্গে দুষ্কর্ম করে অনেক ঘটনা ওইখানেও হয়েছে। নিউ টাউন দুষ্কর্ম মামলা, ব্লাইন্ড স্কুল যেখানে আমাদের অন্ধ ছেলেরা থাকে, বাচ্চারা থাকে, ওইখানটাও দিদির এই গুন্ডাগুলো ওখানেও প্রতারিত করে ওদের সঙ্গে ওখানেও অনেক রকমের ওদেরকে প্রতারিত করেছে। তো অনেক ঘটনা, এক এক করে যদি ঘটনা আমি বলতে যাই অনেক দেরি লাগবে। চूँकि এই সরকার আসার পরে, মমতা সরকার আসার পরে লাগাতার একের পর এক ঘটনা ঘটেই যাচ্ছে, কিন্তু এই সরকারের কোনো ধ্যান নেই। আজ আমি বলতে চাই যে এটা বীরভূমি, এই সেই বীরভূমি যেখানে ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির মতো রাষ্ট্রীয় চিন্তক দিয়েছেন। আর উনি বলেছিলেন कि राष्ट्र की एकता और अखंडता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं हो सकता। और आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो नारा दिया था, उन्होंने उनको सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में कश्मीर से धारा 370 हटाकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। और जो उनका नारा था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, उसको उन्होंने श्रद्धांजलि देकर अब देश में एक प्रधान, एक निशान और एक ही संविधान रहेगा, इस बात को उन्होंने स्थापित किया, सही किया। साथियों, इसके साथ अगर हम देखें तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की
दूरदर्शिता ने भारत को नई दिशा दी। 2047 तक विकसित भारत जो उनका लक्ष्य है, हर भारतीय का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत विकसित भारत बनेगा और जो विश्वगुरु भारत रहा है वो विश्वगुरु बनेगा। आज जिस धरती पे हम खड़े हैं, निश्चित रूप से यही धरती, और इस धरती में वंदे मातरम के जो हम लोग 150वां वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं, ये अमर वंदना को जन्म स्वर्गीय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने दिया, और ये स्वर भारत के कण कण में लोगों को ऊर्जा भरता है और आज़ादी से लेकर आज तक वंदे मातरम लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। साथियों, नियत अगर नेक हो और नीति अगर स्पष्ट हो तो कोई भी कठोर से कठोर भी निर्णय लिए जा सकते हैं राष्ट्र हित के लिए, और यही माननीय प्रधानमंत्री जी का अंत्योदय जो उनका मंत्र है, अंत्योदय के मंत्र को लेते हुए सेवा, सुशासन और समर्पण के पथ पर माननीय प्रधानमंत्री जी अग्रसर हैं। और वहीं अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल कुशासन, परिवारवाद और भ्रष्टाचार का बंगाल में बोलबाला है। आज सत्ता की लालसा ने इस बंगाल सरकार को, पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्यमंत्री को इतना दूर कर दिया आम जन से कि अब उन्हें आम जनता की सेवा, उन्हें कोई सेवा के लिए वो नहीं सोचती, बल्कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने प्यारे लगने लगे हैं। और वैसे लोग जो देश को तोड़ने वाले लोग हैं, वैसे लोगों को संरक्षण देना, उनके लिए वो संरक्षण देने लगी हैं। साथियों, गरीब, युवा, महिला और अन्नदाता, ये हमारे सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार का ये मंत्र है, और इस मंत्र के साथ सरकार काम कर रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास, वुमेन लेड डेवलपमेंट, महिलाओं के नेतृत्व में विकास। और हमें पता है कि आज देश आगे बढ़ रहा है। देश अगर चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना तो निश्चित रूप से उसमें हमारी दीदियों का, हमारी महिलाओं का, हमारी बहनों का अहम रोल रहा, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। আপনারা মনে আছে আপনাদের যখন পশ্চিমবঙ্গে ওই সমুদ্রী ঝড় এসেছিল, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি লাগাতার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধিকারীদের সঙ্গে বৈঠক করে উনি চাইছিলেন এখানে হেল্প করার জন্য। দুবার তিনবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি চেষ্টা করলেন, কিন্তু এই এত অহংকারে চূর মুখ্যমন্ত্রী, উনি এখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির সঙ্গে কথা বললেন না। यानी भारत सरकार सब समय चाय कोनो विपदा आसे, आपदा आसे, आपदाते मदद करार जोन्नो। और भारत सरकारेर जतो स्कीमेर मध्य प्रत्येक राज्य के मदद देवार जोन्नो माननीय प्रधानमंत्री जी सब समय आगे बेड़े और मदद करार जोन्नो मदद करते चाय। किन्तु पश्चिम बंगा बोलते खूब कष्ट होच्छे। पश्चिम बंगा मुख्यमंत्री एभावे कि जत स्कीम भारत सरकारेर स्कीम चलছে, भारत सरकारेर अनेक स्कीमगुलोके निते चाय ना। और এইখানকার कोटी 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 लोक ওনাদের ওই লাভ থেকে বঞ্চিত রাখছেন এইখানের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। এ দিদি স্পিড ব্রেকারের মতো এখানে দাঁড়িয়ে আছে कि जो भारत सरकार से जो योजनाएं आ रही है उस योजना को यहाँ आने नहीं देंगे। उस योजना के माध्यम से, चाहे आयुष्मान भारत योजना की अगर बात करें, उसके माध्यम से
10 लाख यानी कि 5 लाख तो सुविधा है ही। पिछले बार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये अनाउंस किया और ये शुरुआत भी हो गया कि 70 वर्ष से ऊपर सभी लोगों को 5-5 लाख उनके लिए भी आयुष्मान कार्ड के तहत, आयुष्मान योजना के तहत कार्ड बनाया जाएगा। यानी अगर एक परिवार में 70 वर्ष के आयु के अगर माता पिता भी हैं तो उनके लिए होगा। यानी 10 लाख करके इस योजना का लाभ हमारे लोगों को मिलेगा। लेकिन ये बंगाल सरकार, पश्चिम बंगाल की सरकार उस योजना को लागू नहीं करा रही है, जिसके वजह से आज कहीं ना कहीं लोगों को इसका लाभ मिलने से लोग वंचित रह जाते हैं। और स्पीड ब्रेकर के रूप में इन्होंने जिस तरह से भारत सरकार के माध्यम से आज इंफ्रास्ट्रक्चर, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है देश को 47 तक विकसित भारत बनाना, और उसके तहत प्रत्येक राज्य को ये माननीय लक्ष्य प्रधानमंत्री जी का है कि अगर जब तक राज्य विकसित नहीं होगा तब तक हम देश विकसित की कल्पना नहीं कर सकते। तो इसीलिए प्रत्येक राज्य को, चाहे वो रोड सड़क के हाई स्पीड सड़क निर्माण का हो, चाहे वो रेलवे की सुविधाएं हो, हवाई जहाज एयरपोर्ट की सुविधाएं हो, हर एक कनेक्टिविटी से जोड़ना चाहते हैं। लेकिन ये सरकार कहीं भी भारत सरकार के इन सारी योजनाओं में ये भागीदार बनना नहीं चाहती और कहीं ना कहीं ये रोड़ा अटकाने का काम कर रही है और आम लोगों को, आम जन को उस विकास से दूर रखने का काम इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आज हम लोग जानते हैं बंगाल की धरती माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। देवी दुर्गा के रूप में हम देवी को, शक्ति की आराधना करते हैं, देवी को हम पूजते हैं। और पश्चिम बंगाल में बहुत ही बड़े पैमाने पर दुर्गा पूजा मनाया जाता है और यूनेस्को में भी दुर्गा पूजा आया ही है दुर्गा पूजा का। तो निश्चित रूप से जहाँ हम देवी के रूप में माता दुर्गा को पूजते हैं और इस राज्य में अगर हम देखें तो यहाँ बेटियों की गरिमा पर आँच आती है और इस सरकार कुछ उफ तक नहीं कहती। ये सरकार चुप रहती है जब हमारी बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है, बेटियों के साथ दुष्कर्म किए जाते हैं, चाहे वो कहीं भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली हमारी बेटियां हों, शेल्टर होम में रहने वाली हमारी बेटियां हों या स्कूल और कॉलेज जाने वाली हमारी बेटियां हों। तो लगातार इसके द्वारा लगातार प्रताड़ित किए जाने वाले लोगों को ये संरक्षण देती रहती है। और आज एनसीआरबी का डेटा अगर हम बताएं 2023-24 के रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो बंगाल आज अपराध का गढ़ बन चुका है और पूरे देश में एसिड अटैक के सबसे ज़्यादा मामले लगभग अकेले बंगाल में हैं। लगभग जो घटनाएं होती हैं 27% लगभग बंगाल में है। और इसी तरह से अगर हम देखेंगे तो बंगाल में जो केस हो रहे हैं उस केस का यानी दोष सिद्धि दर मात्र 3.7% है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो समस्याएं यानी कि भारत सरकार के माध्यम से कई योजना बंगाल सरकार को, जैसे 181 है जो महिला हेल्पलाइन है, सरकार के द्वारा वो उस योजना को लागू नहीं किया गया। 181 के माध्यम से कि आप कभी भी फ़ोन करें और उसके माध्यम से जो भी संकट में फंसी महिला हो या किसी भी समय मदद की, जिसे मदद चाहिए उस नंबर में आप कॉल करने से आपको मदद मिलेगा। लेकिन इस सरकार के द्वारा उसको लागू नहीं किया गया। वन स्टॉप सेंटर, जहां संकट में फंसी महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर है, जहां पर कि उन्हें काउंसलिंग की व्यवस्था होती है, पुलिस से मदद चाहिए उसकी व्यवस्था, मेडिकल व्यवस्थाएं फैसिलिटीज़ दी जाती है, या फिर टेम्पररी अगर किसी तरह की परेशानी है तो वहाँ जाके वो 20 दिनों तक वो रह सकती हैं। तो इस सरकार के द्वारा सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, उसमें भी जो महिलाओं का हक है उस हक को मारा जाता है। महिलाओं के हक पर कहीं ना कहीं सरकार उसको पेंडिंग में रखी हुई है।
उसी तरह अगर हम देखें तो सरकार के माध्यम से, जो भारत सरकार के माध्यम से कई ऐसी योजना है जिस योजना को ये सरकार लागू नहीं करती है और जिससे हमारी लाखों महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। साथियों, अगर बंगाल की हम बात करें, बंगाल में रेप और पॉक्सो के मामले की, तो रेप और पॉक्सो के मामले भी बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पे सुनवाई दर बहुत ही कम है। और हम भारत सरकार की ओर से इस फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्वीकृति मिली थी, लेकिन इन्होंने उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उसके तहत जो अपराधी है उसको जल्दी न्याय मिलेगा। तो इस सरकार ने, पश्चिम बंगाल सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट इन्होंने नहीं खोला और आज यही वजह है कि आज हमारी बेटियों को न्याय मिलते मिलते बरसों बीत जाते हैं, लेकिन बेटियों को न्याय नहीं मिल पाता और जो अपराधी है वो बेलगाम बेखौफ होकर इस दीदी के राज में हमारी बहनों के साथ उनको परेशान करके, उनको प्रताड़ित कर कर वो अपराधी लगातार वो घूमते रहते हैं और इस सरकार को, बंगाल सरकार को कहीं भी इसका कोई भी उफ तक इसको नहीं होता है। साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें, 38 साल बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से कि हम क्षेत्रीय भाषाओं को मातृभाषा में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और जो बच्चे रटंत मैकाले मॉडल, जो रटंत शिक्षा पर था, उसको हटाकर कि हमारे बच्चे प्रैक्टिकली रूप से, यानी विद्यालय के अंदर एक तो मातृभाषा में उनकी पढ़ाई होगी, भारतीय भाषाओं में होगी और उसके साथ साथ उन्हें स्किल की, क्लास 6 से स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी। उनको मातृभाषा के साथ साथ स्किल बेस्ड और डिजिटल लर्निंग के माध्यम से उन्हें शिक्षा दी जाएगी। तो इसमें अगर हम देखें, इसमें देश भर में करोड़ों स्टूडेंट को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो व्यवस्थाएं जो चल रही है उसका लाभ मिल रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इसका लाभ हमारे बच्चों को नहीं मिल रहा है। और ये सिर्फ इस सरकार की हठधर्मिता है जिसके चलते आज NEP पश्चिम बंगाल में लागू नहीं हुआ और 10,000 करोड़ रुपये से अधिक फंड से 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का फंड ये सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू नहीं करने के वजह से सरकार वंचित रही और हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको भी सरकार ने वंचित रखा। यानी जो सरकार के फंड है उसको भी ये नहीं ली सरकार। देश भर के लगभग 70% स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा है, जिसमें बच्चे AI के तहत भी AI के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं और बंगाल में इंटरनेट सुविधा मात्र 16% स्कूल में रह गए हैं। मात्र 16% स्कूल तक ही ये सीमित है। यानी आज भी ये पुराने युग में रखना चाहती हैं, ये नए टेक्नोलॉजी के साथ बच्चों को जोड़ना नहीं चाहती। कहीं न कहीं विकास में ये बाधक के रूप में, स्पीड ब्रेकर, जैसे मैंने पहले ही कहा, स्पीड ब्रेकर के रूप में है कि विकास में बाधा बनने का काम पश्चिम बंगाल की सरकार कर रही है। इसलिए आने वाले समय में आप सभी माताओं बहनों से, आप सभी बहनों से हमारा आग्रह है कि अभी जो चुनाव होना है उस चुनाव में इस सरकार को हमें बदलना है। आप लोग तय किए हैं ना, प्रण लिए हैं ना, सरकार को बदलना है। ये सरकार जाएगी तभी विकसित भारत के संकल्प, माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को हम सिद्धि तक पहुंचाने में सफल हो सकेंगे। जो बंगाल पहले प्रतिभा के लिए जाना जाता था, बंगाल में एक से बढ़कर एक प्रतिभा होते थे, लेकिन आज उस बंगाल में अगर हम देखें तो ये बंगाल पलायन के रूप में जाना जाने लगा। बंगाल के लोग पलायन करने लगे। प्रोग्रेसिव बंगाल, यानी कि बंगाल आज जो सोचता है भारत कल सोचता था। एक दिन बाद ये बंगाल, और आज इस बंगाल की स्थिति इस सरकार के आने के बाद लगातार दिन प्रतिदिन उद्योग धंधे बंद होने लगे, यहाँ के लोग पलायन करने लगे, जो ब्रेन है ब्रेन ड्रेन होने लगा।
चूँकि हर तरह की सुविधाएं यहाँ ना मिलने के वजह से आज यहाँ के बच्चे पलायन करने लगे, बाहर जाने लगे। तो इसलिए आने वाले समय में हम सबको एक अच्छा बंगाल अच्छा बंगाल गढ़ना है। और एखाने আমাদেরকে যে সিন্ডিকেট রাজ, কাটমানি, এই সংস্কৃতি থেকে এইগুলোকে সমাপ্ত করতে হবে, শেষ করতে হবে। এই কাটমানির সংস্কৃতি এখানে যে দিদির ইয়েতে উঠেছে, সবারই কাছে সব জায়গা থেকে কাটমানি নেয়, নিশ্চয়ই এই সরকার যাবে, তারপরে এইখানের বিকাশও হবে। এখানে যে আমাদের কৃষকরা, অন্নদাতা, ওনারাও ঠিকঠাকভাবে आगे बढ़বে। उसके साथ साथ आज अगर हम देखें तो जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है, लेकिन बंगाल के जो सरकारी कर्मचारी हैं आज भी उन्हें 6ठा वेतनमान लागू है। 6th पे कमीशन के आधार पर ही उन्हें वेतन और पेंशन दिया जाता है। बकाया डीए के लिए भी कर्मचारियों को आंदोलन करना पड़ता है और ये मामला कई कोर्ट में भी है। तो साथियों, हम आपसे यही आग्रह करने के लिए कि बंगाल को, पुराना बंगाल, बंगाल की जो संस्कृति रही है, बंगाल का जो अपना वैभव रहा है, उस वैभव को लौटाना है। और आज आप देख रहे होंगे एसआईआर की जब चर्चा होती है तो कैसे तृणमूल सरकार तिलमिला जाती है। एसआईआर के माध्यम से, यानी कि ये चाहते हैं कि दूसरे बाहर से आके यहाँ का हक बाहर वाले लेके जाए, लेकिन एसआईआर के तहत एक मजबूत और पारदर्शी नागरिक पहचान प्रणाली के माध्यम से हम सीमावर्ती राज्यों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और एसआईआर का मूल मंत्र हम अगर बोले, एसआईआर का एक तो एसआईआर का सीधा अर्थ, एस मतलब सिर्फ, आई मतलब इंडियन, आर मतलब रहेंगे, यानी सिर्फ इंडियन ही रहेंगे, यही एसआईआर का फुल फॉर्म है। और आज इस वोट बैंक की राजनीति के वजह से आज एसआईआर का विरोध तृणमूल कांग्रेस और इसके मुखिया ममता बनर्जी जी कर रही हैं, जिसके वजह से आज हम लोग देख सकते हैं कि जिस तरह से हमारे लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है, सीमाएं सुरक्षित रहे, संसाधनों का लाभ आम जन तक पहुँचे, लेकिन इनके लिए तो सिर्फ तुष्टीकरण की नीतियाँ और तुष्टीकरण ही इनका सब कुछ है कि कैसे हम हक बंगाल के लोगों का लेकर किसी दूसरे देश से जो आने वाले लोग हैं शरणार्थियों को दे, यही शुरुआत से इनका रहा है। तो इसलिए इनका विरोध हम करते हैं और इसीलिए हमको सरकार यहाँ लाना जरूरी है। जे मा माटी ও মানুষের সব সময় মা মাটি মানুষের জন্য এ চর্চা করছিল, কিন্তু মা মাটি মানুষের নামে এখানে সত্তা পরিবর্তন হয়েছিল। আজ সেই বাংলাতে মা অসুরক্ষিত, মাটি ঘুষপেঠিদের হাতে সমর্পিত, আর মানুষ অর্থাৎ সাধারণ মানুষ ভ্রষ্টাচার ও হিংসার চাকিতেই পিছছে। তো এই মা মাটি মানুষের চর্চা করে যে সরকারে আসার পরে আজ এই অবস্থা হয়ে গেছে। সেজন্য আমরা চাই कि আমরা মাফিয়া মুনাফা सबके शेष करे एर जे अहंकार अहंकार के समाप्त करब। और हम आज फिर आप सबसे यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से जब पाकिस्तान में घुसकर हमारे वीर सपूतों ने, भारत माता के सपूतों ने जब वहाँ घुसपैठियों पर वार किया, आतंकवादियों के ठिकानों पर उन्होंने वार किया, ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, उस समय बंगाल की मुख्यमंत्री दीदी उस समय सबूत मांग रही थी। उन्हें अपने देश के युवा, देश के सैनिकों पर भरोसा नहीं है, उन पर विश्वास नहीं है, उनसे ये सबूत मांगती है और ये माँ माटी मानुष की बात कहती हैं। ये घुसपैठियों को संरक्षण देने वाली हैं और जो हमारे युवा हैं, युवाओं से ये कहीं ना कहीं उसके हक को मारने वाली ये सरकार है। तो
तो इसलिए हम यही आप सबसे आग्रह करना चाहेंगे कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने वुमेन लेड डेवलपमेंट, महिलाओं के नेतृत्व में विकास को लेकर देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है, आज हम सब देख रहे होंगे इस बार के बजट को भी हमने देखा कि 9वीं बार हमारी महिला वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने 9वीं बार बजट प्रस्तुत किया। और इस बजट में अगर हम बताएं आपको तो जेंडर बजट इसमें 5 लाख करोड़ रुपए, यानी कि अब तक का सबसे ज़्यादा जेंडर बजट इस बार के बजट में 2026-27 के बजट में इसमें आवंटन किया गया है, ताकि इसके माध्यम से ज़्यादा महिलाओं के नेतृत्व में विकास जो हमारा संकल्प है उस संकल्प को हम आगे बढ़ा सके। और माननीय प्रधानमंत्री जी चाहे लखपति दीदी हो, ड्रोन दीदी और उसके अलावे कई सारी योजनाओं के माध्यम से, यानी चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, बहुत सारे योजना, स्टैंड अप योजना, मुद्रा योजना, पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित है और आज देश की महिलाएं आगे बढ़ रही है। हम यही आप सबसे भी आग्रह करेंगे कि यहाँ भी अपनी सरकार बनाकर हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को सिद्धि तक पहुँचाने के लिए हम सबको काम करना है। और सरकार ने जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीबी के खिलाफ जंग छेड़ा है, निश्चित तौर पे आज गरीबी रेखा से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व का ही ये परिणाम है कि आज महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। साथियों, डबल इंजन सरकार यहाँ बनेगी। अभी हम लोगों के बीच में दिल्ली की मुख्यमंत्री दीदी रेखा गुप्ता जी यहाँ पर बैठी हैं और निश्चित रूप से जब डबल इंजन की सरकार बनती है तो किस रफ्तार के साथ, बुलेट ट्रेन की रफ्तार के साथ सरकार आगे जाती है। तो आप लोगों को भी हम कहना चाहेंगे कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सब लोग मिलकर ये संकल्प आप लोग पहले ही ले चुके हैं, आप संकल्प फिर से लें कि हम सबको बंगाल में अपनी सरकार बनानी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, दीदियों के नेतृत्व में सरकार बनानी है। और जो हम माँ काली, माँ दुर्गा की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, माँ काली के रूप में हम अपनी बहनों की सुरक्षा करने का हम संकल्प लेंगे। इसी बात के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ तारा। धन्यवाद। অত্যন্ত ধন্যবাদ মাননীয় অন্নপূর্ণা দেবীজিকে ওনার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য। এবার আমি মাননীয়া রেখাজিকে মঞ্চে আসার জন্য, উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুগ্রহ করছি। ওনার মূল্যবান বক্তব্য উনি রাখবেন, যার অতি আগ্রহ ধরে আমরা অপেক্ষা করেছিলাম। মাননীয়া रेखा गुप्ता महाशया। जय माँ दुर्गा, जय जय माँ दुर्गा। बाजते चाई, बाजते ताई। आज इस नारी शक्ति के बीच में अपने आप को माँ दुर्गा की उपस्थिति से नवाजी गई इस धरती पे आप सब बहनों के बीच में पहुंच के मुझे दिल की गहराई से बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। ये बंगाल की पवित्र धरती, जहां नारी के अंदर देवी का रूप देखा जाता है, देवी के रूप में पूजा जाता है। दुर्गा माँ विजय की महिमा गाती है। दुर्गा माँ शक्ति की द्योतक है। और ये बंगाल तो जननी है उस भारतीय चेतना की
जहां से हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम आया है। एक बार जोरदार तालियां आप सब लोग अपने लिए बजाएं। मेरी माँ दुर्गा की शक्ति प्रतीका मेरी बहनें जो इस हॉल में बैठी हैं, जो किसी से डरती नहीं हैं, जो ताकत रखती हैं, जो साहस रखती हैं, ऐसी मेरी बहनों अपने लिए जोरदार तालियां बजाओ। शानदार है आपकी उपस्थिति। हम सब की बहुत ही प्यारी अन्नपूर्णा दीदी, संगीता यादव जी, हमारे भाई शिवेंदु अधिकारी जी, यहाँ प्रदेश की महिला मोर्चा की अध्यक्ष फाल्गुनी जी, देवोश्री चौधरी जी जो प्रदेश की उपाध्यक्ष है, शशि अग्निहोत्री जी, हमारी राष्ट्रीय महिला मोर्चा की पदाधिकारी सुजाता पाड़ी जी। मैं आज जब बंगाल की धरती के लिए दिल्ली से निकली तो मैं सच में सोच रही थी कि बंगाल में दीदी है और दिल्ली में भैया था। याद है ना? भैया को तो भगा दिया, अब किसकी बारी है? किसकी बारी है? दोनों एक जैसे थे, वो भी ऐसे ही करते थे। अभी अन्नपूर्णा जी बता रही थी कि आयुष्मान लागू नहीं करना, केंद्र की योजना लागू नहीं करनी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू नहीं करनी, हर चीज पे अपना नाम चाहिए। हमका नाम दो, सब कुछ हमका नाम दो। क्यों दे? जनता का पैसा है, जनता के हित में लगना चाहिए। तुम कौन हो खामखा रोकने वाले? आज मोदी जी लाखों करोड़ रुपए भेजते हैं बंगाल के विकास के लिए, क्या गरीब जनता तक पहुंच पा रहा है? गरीब जनता तक उनके हक का पैसा पहुंच नहीं पा रहा। बंगाल की जनता को विकास मिल नहीं पा रहा। सारा पैसा जा कहां रहा है? सब जानती हो आप लोग, तो बहुत होशियार हो। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि भैया गया, अब किसकी बारी है? अब दीदी की बारी है, क्योंकि बंगाल को भी हक है सम्मान के साथ रहने का। मेरी इन बहनों को हक है इज्जत के साथ अपने इस राज्य में रहने का। इतनी बुरी हालत तो हमने कहीं नहीं देखी। पूरे देश के किसी राज्य में जहां एक महिला मुख्यमंत्री हो और वहां की बेटी सुरक्षित ना हो, वहां की महिला की इज्जत की कोई कीमत ना हो, ऐसा तो पूरे देश में, पूरे विश्व में कहीं नहीं होगा जो इस बंगाल की धरती पे, माँ दुर्गा की धरती पे ममता बनर्जी के रहते हुए हो रहा है। बड़े शर्म की बात है। कितने सारे किस्से हमने बंगाल के बारे में सुने। वो जो आरजी सर हॉस्पिटल था, जहां उस डॉक्टर की चीख शायद आज भी वहां गूंजती होगी, जिससे पूरा देश क्षुब्ध था, पर ममता बनर्जी के कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही थी। याद है कि नहीं याद है? इतनी बुरी स्थिति उस डॉक्टर की हुई। ऐसे ही जब दुर्गापुर की बात हुई, मेडिकल कॉलेज के सामने ही उस छात्रा के साथ में बदतमीजी हुई, शोषण हुआ, और ममता बनर्जी कहती हैं कि रात को बाहर क्यों निकली। शर्म की बात है कि नहीं है? कितने शर्म की बात है। पापियों से कुछ नहीं पूछती हो, उनके बारे में कुछ नहीं कहती हो, और बेटियों के बारे में इल्जाम लगाती हो। ऐसी मुख्यमंत्री चाहिए क्या? ऐसी मुख्यमंत्री चाहिए क्या?
कौन भूल सकता है कलकत्ता कैंपस की उस इंजीनियरिंग छात्रा के ऊपर हमले की बात को? भूल सकते हो क्या? जब नाबालिग बच्चियों के साथ में दुष्कर्म होता है, जब बुजुर्ग महिलाओं तक को भी छोड़ा नहीं जाता, जब इनके नेता, इनके कार्यकर्ता महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ दुष्कर्म करते हैं, आज मैं पूछना चाहती हूं, जब घुसपैठियों की वकालत की बात आई तो ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच गई, काला कोट पहन के वकालत कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट में खड़ी थी। जब इन बच्चियों की आवाज उठानी थी तो कहां चली गई थी ममता बनर्जी? मैं पूछना चाहती हूं। तब इनके मुंह में एक शब्द नहीं आया, तब इन्होंने इतनी सी आवाज नहीं निकाली और घुसपैठियों की वकालत करने के लिए दिल्ली पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट में खुद मुख्यमंत्री जी खड़े होकर के वकालत कर रही थी कि इन घुसपैठियों को मत निकालो, मैं चुनाव कैसे जीतूंगी। इन्हें शर्म नहीं आई? आज बंगाल में रोजाना हजारों घुसपैठिए घुसते हैं, किसका हक मारते हैं? जनता का, आप लोगों का हक मारते हैं, आपके साधनों पे कब्जा करते हैं। जिस शिक्षा पे आपका अधिकार है, जिस स्वास्थ्य सेवा पे आपका अधिकार है, वो सारी चीजें वो लोग ले जाते हैं और हमारे अपने बच्चों के लिए सुविधाएं मिल नहीं पाती है। मैं देख रही थी कि ढेरों स्कूल यहां बंगाल में बंद पड़े हैं, टीचर्स नहीं हैं, कोर्सेज बंद हो गए। ऐसी हालत बंगाल की। वो एजुकेशन मॉडल की बात करते हैं, पर यहां तो स्कूलों को ताले लगे हुए हैं। फिर भी आपको शिक्षा नीति की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चाहती ही नहीं है कि बंगाल के बच्चे पढ़े लिखे हों, समझदार हों, अपने पैरों पे खड़े हों। ये वो नहीं चाहती हैं। आज पूरे देश में सबसे ज्यादा क्राइम कहीं है तो वो बंगाल में है। आज पूरे देश में से सबसे ज्यादा मां और जच्चा बच्चा की जो मृत्यु दर है वो कहीं है तो वो बंगाल में है। आज बाल विवाह की सबसे ज्यादा दर यदि कहीं है तो वो बंगाल में है। क्या ये शर्म की बात नहीं है? ये सब बहुत आज के जमाने में, जब देश की आजादी को 78 साल हो गए और ऐसे में बंगाल उस जमाने में जी रहा है कि जहां बच्चियों की शादी बचपन में कर दी जाती है, उनको शिक्षा नहीं मिलती है। वो कन्याश्री जैसी धोखाधड़ी योजना में उनको वर्गलाया जाता है, पर सुविधा के नाम पे कुछ दिया नहीं जाता। क्या ऐसी सरकार चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या ऐसी सरकार चाहिए आपको? नहीं चाहिए तो इस बार कमर कस लो। इस बार ये आखिरी धक्का लगा करके भैया के साथ में दीदी को भी यहां से क्या करने, इन्हें बता दो कि बंगाल की बेटियों को बहाने नहीं, सुरक्षा चाहिए, अधिकार चाहिए, शिक्षा चाहिए। ये बता दो ममता बनर्जी को कि तुम्हारे भ्रष्टाचार के दिन अब खत्म हो गए हैं। तुम्हारे आतंकी राज के दिन अब मैं तुम्हें जांच रही हूं कि दुर्गा वाली शक्ति तुम्हारे अंदर जगी के नहीं जगी? जगी हुई है ना? अभी एक वीडियो चल रही थी जब इस कार्यक्रम में, तो वो महिला मां दुर्गा के रूप में भाला लेकर के खड़ी थी। उसी ताकत को याद करो, उसी स्वरूप में आना पड़ेगा, क्योंकि
अपने सम्मान की रक्षा खुद करनी पड़ेगी। यदि अपने सम्मान की, अपनी बेटी के सम्मान की, अपने परिवार की रक्षा आप नहीं कर सकोगी तो कोई और करने नहीं आएगा। इस बात को गांठ बांध लेना। एक महिला मुख्यमंत्री जिसका नाम ममता है, क्या उसका नाम ममता रखने लायक है? ममता विहीन है वो, निर्दयी है वो, जिसकी आंखों के सामने बच्चियों से दुष्कर्म हो रहा हो और वो चुप्पी साध ले, उन अपराधियों का साथ दे। उसका नाम ममता नहीं हो सकता। उनका नाम जब सरकार के शेल्टर होम में बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो, वहां के कर्मचारी, वहां के अधिकारी उसकी असमत लूटें, उसकी इज्जत लूटें, ऐसे राज्य की मुख्यमंत्री का नाम ममता नहीं हो सकता। मैं आज आप सब बहनों को ये कहने आई हूं, पूरा देश एक दिशा में चल रहा है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में विकास की बयार बह रही है। सड़कें, फ्लाईओवर, हॉस्पिटल, स्कूल, रेलवे स्टेशन, मेट्रो, क्या क्या काम नहीं हो रहे। अर्थव्यवस्थाएं आगे चल पड़ी हैं, रोजगार के नए नए साधन खड़े हो गए हैं। पर वो बंगाल जो एक समय में आगे होता था, आज वो सबसे ज्यादा पिछड़ गया है। क्यों? क्योंकि एक ऐसी सरकार यहां बैठी है जिसको केवल ये सत्ता चाहिए। इस सत्ता के लिए वो कुछ भी कर गुजर सकते हैं। मुझे अभी रास्ते में आते आते शशि बता रही थी कि दीदी इतनी गुंडागर्दी होती है कि पूछिए मत। मैंने कहा चिंता मत करो, इस बार का चुनाव मेरी बहनें लड़ेंगी। ये शक्ति रूपा, ये मेरी बहनें लड़ेंगी, हाथ में त्रिशूल लेके लड़ेंगी और किसी भी गुंडे की, मवाली की हिम्मत नहीं होगी कि इस बार वो गुंडागर्दी कर सके। इस बार अति हो चुकी है, अब सहन नहीं करेगी मेरी बहनें। जो कि बंगाल की गति रोकेगा, जो महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाएगा, जो हमारी बेटियों के साथ दुष्कर्म करने की सोचेगा भी, उसको बंगाल से बाहर कर दिया जाएगा। करोगी ना? फिर किसी बेटी के साथ में उसका अपमान ना हो, इसकी जिम्मेवारी मैं आज आप सबको देके जाती हूं। आज से लेकर के जिस दिन तक आपका वोट डल ना जाए, एक एक व्यक्ति से मिल करके इस बार ये मुहिम छेड़ दो कि अब की बारी हमारी कमल फूल की बारी होनी चाहिए। इस बार बंगाल में कमल का फूल खिलना चाहिए, क्योंकि देवी के चरणों में तो कमल फूल से ही अर्चना होती है। बहनों, जिस बंगाल में इतना अपराध हो चुका हो, जिस बंगाल में विकास ना हो, जिस बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति होती हो, जहां हिंदू त्योहारों को रोक करके किसी और धर्म के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए ताकत लगा दी जाती हो, जहां विदेशियों के लिए, जहां घुसपैठियों के लिए खजाने खोल दिए जाते हों, और जहां आम नागरिक अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए तरसता हो, क्या ऐसी सरकार चाहिए? क्या ऐसी सरकार चाहिए? नहीं चाहिए। तो इस बार क्या बनना पड़ेगा? क्या बनना पड़ेगा? अच्छे से याद करा के जा रही हूं। डर तो नहीं जाओगी? घबरा तो नहीं जाओगी? घबराना नहीं, डरना नहीं, क्योंकि दुर्गा की शक्ति के आगे किसी की शक्ति चलती नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं,
और इतना कहती हूँ कि मिलती रहूंगी, आती रहूंगी, आप सबकी हिम्मत बढ़ाती रहूंगी। दिल्ली जीती है, अब बंगाल की बारी है। और फिर से एक बार बता दो, भैया को तो भेज दिया, अब किसकी बारी है? देखो एक नारा लगाना है, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, बाजते चाई। हाँ तो याद रखना भाई, इस बार इनकी आखिरी बारी है और इस बार इनको ये बता देना है कि जब बंगाल की बहनों में दुर्गा जागती है तो असुरी शक्तियों का भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे वंदे, दुर्गा माई की, दुर्गा माई की। बहुत बहुत धन्यवाद। একটা সূচনা আপনাদের জন্য আছে। প্রোগ্রাম শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আমরা সবাই মিলিত হয়ে একটা বিক্ষোভ মিছিলের বাইরে আয়োজন করা হয়েছে। আমরা এখান থেকে ভিআইপি বাজার পর্যন্ত যাব, সেখানে আপনাদের জন্য স্ন্যাক্সের ব্যবস্থা